देखो भाई, I know exactly why you clicked on this video. You're probably sitting there thinking that your business isn't growing because you don't have the right strategy, the right mentor, or maybe you just need to find another YouTube video on how to scale to $10,000 a month. But here's the brutal truth that no one actually tells you. The real reason why your business is failing is because your personal life is a mess. See, your business is nothing more than a mirror which is reflecting back absolutely everything that is broken in your personal life. And I'm not just saying this just to sound deep or philosophical. I'm telling you this because I've seen it with my own eyes. I've worked with hundreds of people across both of my communities, Kafla and Karva, and every single time I see someone whose business is stuck, their personal life is an absolute shambles. So here's what you're going to get by the end of this video. You're going to understand the exact 5 principles which connect your personal chaos to your business failure. I'm going to show you why a cluttered room will actually result in a cluttered revenue system. I'm going to show you why your inability to handle stress means that you'll always run a small business. And most importantly, I'm going to give you the exact framework to fix both of them at the same time. Now here's why this video is different from absolutely every other video that you've watched on this specific subject. Everyone else is teaching you strategies, tactics, and hacks. I'm going to show you the foundational psychology that determines if those tactics will even work for you. Because you can learn the best sales script in the world, but if you can't even keep your room clean, then you won't have the discipline to execute that script properly. So if you're actually serious about fixing your business, then stay till the end, because after this video, you'll never look at your personal life the same way again. Point number 1, how you do one thing is how you do everything. I used to watch a lot of Andrew Tate's videos in which he used to say that he will never do business with fat people, and I always used to think that that is a little bit harsh, because his logic behind not doing business with fat people was that fat people are never going to be disciplined, because if they were actually disciplined, then they'll actually be in shape, and when they won't be disciplined in their personal life, they will never be disciplined in their business life either. वो डेडलाइंस को मिस करेंगे क्योंकि वो अपनी डाइट पे चीट करते हैं, वो काम को पूरे दिल से नहीं करेंगे क्योंकि वो जिम ही पूरे दिल से नहीं लगाते और ना अपनी डाइट को पूरे दिल से फॉलो करते हैं. Their personal life discipline is going to creep into their business life discipline as well. Because see it like this. Let's say आपका एक दोस्त होता और उसका नाम let's say जमील है, and आप जमील से बोलते कि यार तुम फैसलाबाद जा रहे हो ना, फैसलाबाद से वापसी पे जो है ना वो मैंने अपने एक लैपटॉप को ठीक होने के लिए दिया हुआ, उधर से वो पिक करते हुए वापसी पे ले आना. जमील कहता है कि यार 100% मैं वापसी पे तुम्हारे लिए ले आऊँगा. जब जमील वापस आता है, आप उससे पूछते हो कि यार आप लैपटॉप लेके आए, तो जमील कहता है कि नहीं यार मैं भूल गया. तो आप इस एक्सचेंज से बेसिकली ये चीज़ कंक्लूड करोगे कि जमील बहुत ज़्यादा रिलायबल इंसान नहीं है, एंड कल को अगर आपने इस तरह का कोई काम करवाना होगा तो आप जमील की जगह किसी और बंदे से करवाओगे, बिकॉज ऑब्वियसली ही डिडंट फुलफिल हिज प्रॉमिस द फर्स्ट टाइम. इन द सेम वे अगर आप इसी एग्जाम्पल को एंड्रू टेट की एग्जाम्पल से जोड़ें कि एंड्रू टेट कहता है कि भाई वो फैट लोगों के साथ बिजनेस नहीं करता, तो अगर आप इस रेड फ्लैग को एक्चुअली फर्स्ट डे पे ही रिकग्नाइज कर लेते हैं कि दिस पर्सन वोंट एक्चुअली बी द बेस्ट फॉर योर बिजनेस, my question to you is, can you identify the red flags in yourself? Because the thing that I've learned is business is 80% about your mindset and 20% about your tactics, because absolutely everyone can go ahead and watch all the free courses on YouTube, on Udemy, and buy all the courses as well. But why do you think not everyone is successful by buying these courses and by watching all of these YouTube courses? क्योंकि let's say कि अगर 100 लोग जो है वो एक कोर्स को खरीदते हैं, which is the best course in the world on how to do Amazon FBA as an example, उसमें से जो है वो आपके ख्याल में सारे के सारे 100 लोग सक्सेसफुल होंगे? Obviously not, right? How many do you think will actually be successful? Probably like 5, probably 10 people, right? मतलब जो actually like 6-7 figures तक अपने business को scale कर लेंगे. Why do you think the rest of the 90 people weren't actually successful at doing Amazon FBA? Was it because they didn't have access to the same information? Because they did have access to the same information. The difference was their mindset. जब आप एक ऐसे पैराडाइम से ऑपरेट कर रहे होते हो कि यार you have to make your business successful and आपकी personal life actually in check भी होती है, तभी जो है वो with the right information you can get the desired kind of results as well. Because if you're not operating from the right kind of mental paradigm, then it's going to be absolutely impossible for you to have a successful business, even if you have access to the absolute best information in the world. मैं जब A-levels में होता था तो हमारे एक फिजिक्स टीचर होते थे जो अकेडमी रन करते होते थे, और उनकी बहुत फिट किस्म की एकेडमी थी, एंड ही वाज कंसिडर्ड लाइक द बेस्ट टीचर इन इस्लामाबाद फॉर फिजिक्स ए लेवल्स. एंड आई रिमेंबर कि उनकी क्लास में जो है वो 100-150 लोग होते थे, लेकिन उनमें से जो ए स्टार वाले स्टूडेंट्स होते थे वो 10 से 12 ही होते थे. बाकी सारे स्टूडेंट्स जो है वो या तो ए या फिर बी या फिर सी लेवल के स्टूडेंट्स होंगे, और उनकी क्लास में से भी कुछ ऐसे लोग निकलते थे जिनके यूज भी होते थे. एंड इट वाज ऑल बिकॉज दे ऑल हैड एक्सेस टू द सेम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द सेम काइंड ऑफ सिस्टम्स.
लेकिन ये जो टॉप, ये जो क्रीम वाले लोग थे, जो ए स्टार स्टूडेंट्स थे, दे वर ऑपरेटिंग फ्रॉम अ डिफरेंट मेंटल पैराडाइम, दे वर ऑपरेटिंग फ्रॉम एन एलिवेटेड माइंडसेट. तो बिकॉज दोज ए स्टार स्टूडेंट्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन देयर पर्सनल लाइफ, दे वर ऑर्गेनाइज्ड विद देयर स्टडीज एज वेल, एंड एज अ रिजल्ट दे ऑल गॉट ए स्टार्स. और ये जो यूज वाले स्टूडेंट्स थे, ये भी उसी क्लास में बैठते तो होते थे, लेकिन फर्क सिर्फ और सिर्फ ये था कि उनके पास अपने कमरे को भी साफ रखने का डिसिप्लिन नहीं था. वो जब कहते थे कि हम लोग सुबह 8 बजे पढ़ाई करना शुरू कर देंगे, तो वो एक्चुअली 10 बजे करना शुरू करते थे. बाकी टाइम में जो है वो या तो कोई सीजन देखते रहते थे या फिर यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखते रहते थे. एंड इससे आपको इसी चीज़ का अंदाजा हो जाना चाहिए कि हाउ यू डू वन थिंग is how you do everything. So my question to you is, how are you doing everything right now? Is your personal life actually in check? Have you not got access to the right kind of systems or the right kind of mentorships or the right kind of videos which are hidden under some paywall? Or are you elevating from a shitty mindset right now? Because 9 times out of 10, I can guarantee you that you are operating from a shitty kind of mindset right now. You don't have the discipline to keep your room clean. You don't have the discipline to keep your restroom clean. You don't have the discipline to do what you said you were going to do at a specific time. आप कहते हो कि आप 8 बजे जिम जाओगे, लेकिन आप एक्चुअली 10 बजे जाते हो. आप कहते हो कि आप अपनी डाइट को जो है वो कंट्रोल में रखोगे, लेकिन आप एक्चुअली नहीं रखते. आप कहते हो कि आप इतने बजे जो है वो काम शुरू कर दोगे, लेकिन आप इतने बजे नहीं काम शुरू करते. तो what effect do you think is that going to have on your business? Because the truth is, you have all the information in the world. You've watched all of Alex Ramossi's videos. You've watched all of William Brown's videos. You've watched all of Naval Ravikant's videos. The problem is not the fact that you don't have the right kind of information. The problem is that your personal life is an absolute mess. You don't have the discipline to actually sit down and start doing stuff and start throwing spaghetti at the wall and see what sticks. Because the way to be successful in business is to not know all of the right kind of information. It is to actually sit down, fail on repeat, have the discipline to be failing on repeat, and still keeping on doing the same thing over and over again at the point where you hit that escape velocity moment. And you will never hit that point agar aapki personal life in check nahi hai, because how you do one thing is how you do everything. Point number 2, a cluttered personal life means a cluttered business. I want you to genuinely imagine something for a second, and that is कि एक वाईफाई मोडेम है और उसके ऊपर जो है वो 100 लोग कनेक्ट हुए हुए हैं. तो डू यू थिंक कि जब 100 लोगों ने उस एक ही वाईफाई मॉडेम से कनेक्ट किया हुआ होगा, तो उस वाईफाई मॉडेम की जो है वो अच्छी स्पीड आ रही होगी, या डू यू थिंक कि जरा स्लो स्पीड आ रही होगी? ऑब्वियसली स्लो स्पीड आ रही होगी, राइट? व्हाट इफ इसी सेम वाईफाई मॉडेम विद द सेम काइंड्स ऑफ स्पीड्स एंड विद द सेम काइंड ऑफ बैंडविड्थ, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 3 लोग कनेक्ट हुए हुए होते? तो डू यू थिंक कि इन कंपैरिजन टू 100 पीपल बीइंग कनेक्टेड टू इट, जब 3 लोग सिर्फ और सिर्फ कनेक्टेड होंगे तो उसकी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा होगी ना, राइट? व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि योर ब्रेन राइट नाउ इज लाइक दैट वाईफाई मॉडेम व्हिच इज कनेक्टेड टू 100 पीपल? बिकॉज ये बात मान लो कि जिस टाइम आप उठते हो टू द मोमेंट दैट यू गो टू स्लीप, उस पॉइंट तक आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेंटल बैंडविड्थ है. मैं बहुत ज्यादा आप लोगों को बोल रहा होता हूँ ना कि बहुत ज्यादा रील्स ना स्क्रॉल किया करो, तो कभी आपने सोचा है कि मैं ये एग्जैक्टली क्यों बोलता हूँ? बिकॉज लेट्स से कि जब आप उठे थे तो आपके पास 1000 ब्रेन पॉइंट्स थे, ठीक है? लेट्स से कि ये इमेजिनरी चीज है जिसको हम ब्रेन पॉइंट्स कहते हैं, और आप जब सुबह उठे थे तो आपके पास ये 1000 ब्रेन पॉइंट्स थे. तो आप सुबह के टाइम पे उठे और आपने रील स्क्रॉल करना शुरू किया, आपको पता चला कि यार मुल्क में ये चीज़ हो रही है, ये वाला हादसा हो गया, इस हादसे की वजह से आपके बिजनेस के ऊपर ये इफेक्ट आएगा, स्मॉग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और इस स्मॉग की वजह से जो है वो आपकी फिजिकल हेल्थ के ऊपर फलां इफेक्ट होगा. आप देखते हो कि दिस इज़ ब्रोकन इन द वर्ल्ड, दिस इज़ ब्रोकन इन द वर्ल्ड, ये वाला बिजनेस नो लॉन्गर वर्क्स बिकॉज अब जो है वो AI आ गया. एंड बिकॉज ऑफ दिस कंसिस्टेंटली आपने सुबह उठते साथ जो है वो अपने 20 ब्रेन पॉइंट्स कंप्लीटली ज़ाया कर दिए हैं. उसके बाद आप क्या करते हो? उसके बाद आप लेट्स से नेटफ्लिक्स देखना शुरू कर देते हो, और नेटफ्लिक्स देखते हुए जो है वो आपके ब्रेन पॉइंट्स उसके ऊपर काफी ज्यादा यूज हो रहे होते हैं, बिकॉज वो इन रियल टाइम आपके माइंडसेट को चेंज कर रहा है विदाउट यू इवन नोइंग अबाउट इट. आप जब रील स्क्रॉल कर रहे होते हो तो उसमें एक ऐसा पॉइंट आता है वेयर यू एंटर स्टेट्स ऑफ हिप्नोसिस, के जहां पे आप इतना ज्यादा डीपली उस चीज के अंदर इंडल्ज हो जाते हो कि अगर आप उसे छोड़ो और आप इर्द गिर्द देखो तो आप कहते हो कि यार मैं पता नहीं कितनी देर से ये रील स्क्रॉल कर रहा था. और उतने टाइम के लिए जो है वो आपका दिमाग जो है वो एक जरखेज जमीन की तरह होता है जिसके ऊपर एल्गोरिदम जो है वो दोबारा दोबारा अपने मर्जी के बीज जो है वो बोए जाता है. तो व्हाट डू यू थिंक यू आर गोइंग टू हार्वेस्ट फ्रॉम योर ब्रेन व्हेन योर इनपुट्स are so shit? Now genuinely try to review your personal life for a moment. You're watching 3 separate Netflix shows. आप 6 different YouTubers को सुनते हो in the same niche. Like as an example, let's say कि आप Amazon FBA के अंदर बहुत ज़्यादा interested हो and आप 6 YouTubers को सुनते हो Amazon FBA के अंदर. Obviously उन सब के तरीक़ेकार, उन सब के systems जो है वो completely फ़र्क होंगे and वो सारे जो है वो एक दूसरे को किसी ना किसी हद तक contradict करेंगे, right? क्योंकि एक YouTuber आपको बोलेगा कि strategy A works and दूसरा YouTuber आपको बोलेगा strategy A is absolutely useless, strategy B works these days. तो इसकी वजह से आप constant states of confusion
के अंदर बैठे रहोगे जहां पे आपको एनालिसिस पैरालिसिस हो रहा है, बिकॉज आपको नजर आ रहा है कि एक यूट्यूबर एक बात बोल रहा है, दूसरा यूट्यूबर एक बात बोल रहा है, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या एक्शन लूँ, और अब मैं बैठ जाता हूँ अपने हाथ के ऊपर हाथ रख के और मैं एक्चुअली कुछ भी नहीं करता बिकॉज मुझे तो समझ ही नहीं आ रही. इट इज ऑल बिकॉज योर मेंटल बैंडविड्थ इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस सो मेनी चैनल्स कि यू डोंट हैव द बेस कैपेबिलिटी ऑफ टेकिंग एक्शन राइट नाउ. बिकॉज मैं दोबारा एक ही बात करूंगा कि द वे टू ग्रो योर बिजनेस इज टू नॉट actually know about all the right kind of information and have as much information as possible. It is just brute action. And you're never going to have the capability to take brute action if you are listening to 6 different people talk about the same kind of subject. तो मेरा आपको genuinely ये suggestion होगा कि आप जिस भी field के अंदर हो, whether it's Amazon FBA, whether it's copywriting, whether it's content creation, whether it's coaching, whatever it is, only listen to one YouTuber. I don't care if you don't listen to me. Just listen to one YouTuber. Then मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप मेरी बातें सुन तो रहे हो, लेकिन ये एक कान से इधर जाएंगी और एक कान से उधर निकल जाएंगी. Because the next video you watch is going to say that everything that Uzair said was absolutely wrong and you should be doing things like this instead. So please don't do me the favor of watching my videos if you're not going to actually implement the things which I'm telling you. Simplify your personal life as much as possible, starting from the clothes that you wear, to the amount of businesses that you're running, to the amount of YouTubers that you listen to the amount of talking stages that you have right now, to the amount of Netflix shows that you watch. Everything should be simplified because a simplified personal life is going to equal to a lucrative business, and a complex personal life is going to end up in a complex business. Point number 3, simple scales and complex does not scale. देखो, you have to understand कि when you scale the good, you also scale the bad as well. इस पॉइंट को एक्चुअली समझाने के लिए मैं आपको 2 एग्जांपल्स देता हूँ. द फर्स्ट एग्जांपल इज, लेट्स से कि आप एक परफ्यूम ब्रांड लॉन्च करते हो एंड आप उस परफ्यूम ब्रांड को एज प्रॉफिटेबल एज पॉसिबल बनाना चाहते हो, और आप उसकी वेबसाइट बनवाते हुए एक बहुत चीप सी वेबसाइट बनवा लेते हो बिकॉज यू वांटेड टू सेव एज मच मनी एज पॉसिबल. नाउ योर गोल इज टू मेक दिस परफ्यूम ब्रांड एज प्रॉफिटेबल एज पॉसिबल, राइट? आप एड्स के ऊपर पैसे पे पैसा डालते रहते हो एंड इवेंचुअली आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक बहुत ज्यादा इंक्रीज करने लग जाती है. अब जो आपने वेबसाइट बनवाई थी, इट वॉज ओनली ऑप्टिमाइज्ड फॉर 5000 डेली विजिटर्स. So if you were to actually scale the amount of money that you were spending on ads, and as a result you were sending more and more people onto the website every single day, so because you had a shitty website, your website is eventually going to crash. तो जैसे ऐसा एड्स पे पैसे बढ़ाने की वजह से जो है वो आपकी सेल्स दिन ब दिन थोड़ी इंक्रीज कर रही थी, लेकिन because you had a shitty website, you also scaled the bad as well. Now you're stuck with the website which is now down. वो completely down हो चुकी है because it was only optimized for 5000 daily visitors, and now you're thinking कि यार मैं अब exactly क्या करूं, मेरे एड्स पे तो पैसों पे पैसे लगते जा रहे हैं, आई कांट स्टॉप स्पेंडिंग मनी ऑन एड्स. तो इससे आपको ये एग्जैक्टली पता चल जाता है कि व्हेन यू स्केल द गुड, यू स्केल द बैड एज वेल. सेकंड एग्जांपल इज, लेट्स से कि आप कोई हाई टिकट सर्विस ऑफर करते हैं एंड उस हाई टिकट सर्विस के अंदर लेट्स से कि आप कम्युनिकेशन के लिए जो है वो स्लैक इस्तेमाल करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ. अगर आपके पास इस वक्त इस सर्विस के अंदर जो है वो 5 क्लाइंट्स हैं एंड आप बेयरली उन 5 क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन मेंटेन कर पाते हैं बिकॉज आपके सिस्टम्स इतने ज्यादा इन चेक नहीं है एंड यू डोंट नो हाउ टू यूज स्लैक, इवन दो इट इज क्वाइट सिंपल. आई एम जस्ट सेइंग दिस फॉर द सेक ऑफ द एग्जांपल. तो व्हेन यू डू इवेंचुअली गेट टू 50 क्लाइंट्स, तो 50 क्लाइंट्स के ऊपर जो है वो कम्युनिकेशन की क्वालिटी 5 क्लाइंट्स से भी बहुत कम हो जाएगी. तो इफ यू डिडंट एक्चुअली हैव योर सिस्टम्स इन चेक फ्रॉम द पॉइंट व्हेन यू हैड 5 क्लाइंट्स, तो जब 50 क्लाइंट्स होंगे तो उस पॉइंट पे योर बिजनेस इज एब्सोल्युटली गोइंग टू फॉल अपार्ट एंड यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ बैड रिव्यूज एंड एज अ रिजल्ट योर बिजनेस इज गोइंग टू start going down. तो when you scale the good, यानी कि इनकम तो स्केल हो रही थी 50 क्लाइंट्स के साथ, you scale the bad as well. Bad यानी कि the bad communication that you had with your clients on Slack. तो इन 2 एग्जांपल्स को अगर आप अपनी लाइफ के साथ एक्सट्रैपोलेट करें तो you have to understand कि money is the best amplifier. अगर आप इस वक्त एक इतने से एरोगेंट इंसान हैं तो जब आपका इनकम 10x होगा तो आप 10x ज्यादा एरोगेंट हो जाएंगे. अगर आप इस वक्त जो है वो इतने से डिसऑर्गेनाइज्ड इंसान है तो जब आपका इनकम लेवल 10x होगा तो आप इतने ज्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे. माय क्वेश्चन टू यू इज कि अगर आप इन फंडामेंटल चीजों को ठीक नहीं कर लेते आज के दिन में तो व्हाट इफेक्ट इज दैट गोइंग टू हैव इन योर बिजनेस टुमारो? बिकॉज योर गोल इज टू इंक्रीज योर रेवेन्यू, राइट? But you haven't even fixed your personal life. When you scale the good, you also scale the bad. तो इस वक्त अपनी लाइफ के अंदर एज एन एक्शनेबल स्टेप इस वक्त देखें कि आपकी लाइफ के अंदर क्या क्या चीज़ें बैड हैं एंड हैव दिस अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन विद योरसेल्फ. बिकॉज देखो कल के दिन जब आपका बिजनेस एक जगह पे स्टक होगा ना, इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू टू एक्सटर्नलाइज ब्लेम. इसकी गलती है, उसकी गलती है, उसकी गलती है. सबसे पहला क्वेश्चन दैट यू शुड बी आस्किंग इज मेरी इसमें क्या गलती है, एंड उन गलतियों को ठीक करो. बिकॉज वो गलतियां भले जितनी भी छोटी हों, जब पैसे बढ़ना शुरू होंगे तो वो गलतियां बड़े से बड़ी होने लग जाएंगी. अगर आप इस वक्त एक मेसी वीडियो एडिटर हो विद 2 क्लाइंट्स, व्हेन यू गेट 10 क्लाइंट्स यू आर गोइंग टू बी 5x मोर मेसी देन यू आर राइट नाउ.
तो इसमें मेरी दो बातें मान लो। एक तो ये कि अपनी पर्सनल लाइफ को जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना ज़्यादा सिंप्लीफाई करो, एंड दूसरा ये कि अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर इस वक्त ऐसे बॉटल नेक्स को आइडेंटिफाई करो। आर यू नॉट डिसिप्लिन्ड इनफ? आर यू नॉट गुड विद टाइमलाइंस राइट नाउ? आर यू अ लिटिल बिट मेसी एज अ पर्सन? एंड इन सब होल्स को एज सुन एज पॉसिबल प्लग करो, बिकॉज व्हेन द रेवेन्यू स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, बिकॉज इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, तो उस पॉइंट पे अगर इस गले के अंदर जो है वो पानी ज़्यादा भरने लग जाओगे, अगर इसके अंदर सुराख होंगे तो उसमें से वो लीक करने लग जाएगा, लेकिन अगर सुराख नहीं होंगे तो फिर बढ़ता रहेगा और बढ़ता रहेगा और बढ़ता रहेगा और आपको कभी भी प्यासा नहीं होने देगा। अच्छा, so guys, before we move on to the last point, which is probably the most important point, I wanted to let you guys know about a giveaway that we're having. तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरी एक पेड कम्युनिटी है by the name of काफला, जिसके अंदर हम स्किल्स टीच करते हैं, जिसके अंदर हम आउटरीच टीच करते हैं, जिसके अंदर हम हाई टिकट क्लाइंट्स को लैंड करने के तरीके टीच करते हैं. We are actually giving away one free spot to that community in this video. If you want to be the lucky winner who gets that free spot, there is going to be a form down in the description which you need to fill in full. जो फॉर्म है उसके क्वेश्चंस आपने 100% फिल करने एंड हमारे पास आपका डाटा आ जाएगा. One of you guys are going to be picked and you're going to be getting free access to that community. So make sure you click the link down in the description. It's going to be a super easy 30-second form that you can fill in real quick. So make sure that once you're done with this video, just go down in the description and fill out that form. Now the final and the most important point is that a low stress tolerance will always equal to a small business. हमें तो ये चीज कुरान में भी बताई जाती है कि Allah does not burden a soul more than it can bear. So I want you to generally ask yourself कि इस बात का exactly मतलब क्या है. Now before I tell you कि इसका exactly मतलब क्या है, I want to genuinely ask you this question कि if there was a business which was making $1 million a month, आपके ख्याल में जो है वो उस बिजनेस के अंदर CEO के ऊपर कितना ज्यादा स्ट्रेस होगा? Do you think it's going to be this amount of stress or do you think it's going to be this amount of stress? Obviously like this amount of stress, right? Because क्योंकि वो CEO इतना ज्यादा burden bear कर सकता है, इसी वजह से he is awarded with that amount of revenue. तो अगर आप इस वक्त let's say कि एक ऐसी लाइफ जी रहे हो where you're making less than $1,000 a month, तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त आपके ऊपर इतना ज्यादा कोई स्ट्रेस नहीं है. When you start increasing that revenue level day by day, तो the amount of stress on you is going to increase day by day and day by day and day by day. अपने बिजनेस रेवेन्यू को स्केल करते हुए हो सकता है कि आप एक ऐसे लेवल को हिट करो कि जहां पे आप एक रेवेन्यू सीलिंग हिट कर जाओ, जिससे ऊपर स्केल करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट साबित हो रहा है. उस मोमेंट में ये चीज मान लो कि इट इज नॉट एक्चुअली द सिस्टम्स और द राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच आर प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम स्केलिंग पास्ट दैट रेवेन्यू सीलिंग. इट इज एक्चुअली योर स्ट्रेस टॉलरेंस. तो यू हैव टू मेक श्योर कि व्हाटएवर रेवेन्यू लेवल दैट यू आर ऑन राइट नाउ, यू मेक श्योर कि यू डेवलप योर स्ट्रेस टॉलरेंस एज मच एज पॉसिबल. नाउ एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह आप अपने मसल्स का साइज इंक्रीज कर सकते हो, उसी तरह आप अपनी स्ट्रेस टॉलरेंस का साइज भी इंक्रीज कर सकते हो. एंड द वे टू एक्चुअली डू दैट इज टू चेस वन थिंग एंड दैट इज रेजिस्टेंस. आपको जिस चीज के अंदर लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस फील हो रही है, वो चीज सबसे ज्यादा करो. अगर आपको सुबह उठते साथ पढ़ाई करने में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस फील होती है तो सुबह उठते साथ पढ़ाई करो. अगर आपको सुबह उठते साथ जो है वो वीडियोस बनाने में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस फील होती है तो सुबह उठते साथ सबसे पहली चीज़ वीडियोस बनाओ. अगर आपको सुबह उठते साथ सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस फील होती है ठंडे पानी से वुजू करने में, तो सुबह उठते साथ ठंडे पानी से वुजू करो. बिकॉज जितना ज़्यादा आप रोज़मर्रा बेसिस पे उन चीज़ों को करोगे जिनके अंदर आपको सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस फील होती है, जो सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होती हैं, उतनी ज़्यादा आपकी दिन ब दिन स्ट्रेस टॉलरेंस इंक्रीज करती जाएगी. इस चीज़ के ऊपर एक्चुअली पर्सपेक्टिव गेन करने के लिए कि क्या मैं रोजमर्रा की बेसिस पे अपने आप को चैलेंज कर भी रहा हूं कि नहीं, मैं आप लोगों को एक एक्सरसाइज सजेस्ट करता हूं. एंड वो एक्सरसाइज करने में सिंपली आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगेंगे. एक्सरसाइज ये है कि आपने अपना वर्क डे खत्म करने के बाद रात को आप जिस वक्त भी घर जाते हो, आपने एक कागज पेंसिल लेनी है और उसके ऊपर अपने आप से 3 सवाल पूछने हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज, डिड आई डू समथिंग टुडे व्हिच एक्चुअली मैटर्ड? क्वेश्चन नंबर 2 इज, इफ आई वर टू डाई टुडे वुड आई बी हैप्पी विद द वे आई लिव्ड, एंड इफ नॉट देन व्हाई? एंड क्वेश्चन नंबर 3, what is one emotional weight that I am carrying on my shoulders right now that I don't need to be carrying? अगर आप अपने से सिर्फ और सिर्फ ये 3 क्वेश्चंस ऑन अ डेली बेसिस पूछने लग जाते हो ना, तो आपको इस चीज के ऊपर कॉन्टेक्स्ट मिलेगा कि ना तो आप रोजमर्रा की बेसिस पे अपने आप को पुश कर रहे हो, ना तो आप कोई ऐसी चीज कर रहे हो which actually matters, and you're carrying emotional trauma from 6 months ago which doesn't even actually matter. इसकी वजह से आपको अपनी लाइफ के ऊपर ना सिर्फ पर्सपेक्टिव मिलेगा, बल्कि ये प्रैक्टिस आपको अपनी लाइफ के अंदर राइट डायरेक्शन के अंदर भी डायरेक्ट करने लग जाएगी. तो देखो भाई, these 4 points aren't just theory, this is how reality actually works. Your business is simply and truly just an extension of what you are as a person. If you're disorganized personally, your business will be disorganized. If you quit when things get hard in the gym, you'll quit when your business gets hard. If you can't handle the stress of a difficult conversation with your family, you definitely can't handle the stress of a difficult client negotiation. The good news is that you can fix both at the same time. Every single day that you make your bed, you're actually building your business discipline. Every single time that you go to the
the gym when you don't feel like it, you're actually building your entrepreneurial resilience. And every single uncomfortable conversation you have, you're actually expanding your capacity to do hard things in business. Now, before you go, I want you to do one thing right now. Look around your room, look at your desk, and look at your daily routine, because that's your business. That's your future income, and that's the reality that you're creating. If you don't like what you see, then you know exactly what to do. Fix your personal life and watch your business fix itself. Again, as I told you कि I'm giving away a free spot to my premium community काफला, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो आपको एक फॉर्म की लिंक नजर आ रही होगी. उस फॉर्म के अंदर टोटल 8 क्वेश्चंस हैं and it's only going to take 30 seconds to fill. And for one of you guys who fills the complete form, you're going to be getting a free access to my premium community काफला. So make sure you click the link in the description and fill it out in full. And remember that for those of us climbing to the top of the food chain, there can be no mercy, my friend. There is but one rule: hunt or be hunted. Thanks for watching.